Hello, friends, and a very good afternoon to all of you. Hi, this is Anchal, and today we'll be dealing with certain questions. And if I'm not wrong, we were studying adverbs, right? अगर मुझे जहां तक याद है और अगर मुझे सही याद है तो हम adverb पढ़ रहे थे. Were we studying adverbs? बताओ. Okay, okay. They elected as appointed as. अभी बताते हैं run by उसके बारे में, ठीक है? Yeah, so very true. This is what we study. So we must have studied this thing, MPT rule. We must have studied the placement of adverb of degree and frequency. We must have studied certain words that are used as adjectives and adverbs, and we must have studied so very in too, right? Chalo. So the fifth rule comes in here, like अगर आपके statement में very much और very much लगा हुआ है, so how will you differentiate it? कैसे मानोगे कि ये सब चीजें अलग है या फिर कैसे? Have to study law of inversion. I'll definitely teach that. Okay, now talking about much and very much, let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Much and very much are the two words, ये दो words है which are interchangeable. That means you can use very much in place of much and you can place much in place of very much. ठीक है, much की जगह पे very much लग सकता है, very much की जगह पे much का use हो सकता है. ठीक. Now there are three conditions accordingly. So very is used with positive degree of adjective. ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, राइट? तो मच का यूज, वेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है. मच का यूज इज विथ कंपैरेटिव सेंस एंड डिग्री. ठीक है, कंपैरेटिव सेंस और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ ही आप इसका यूज करते हो. ठीक. सेकेंड थिंग, व्हेन यू हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मींस ing, adjective in ing form, right? Adjective in ing form, then you will use very. ठीक है, if you have past participle means again adjective, but this time in verbs third form. ठीक है, talking about superlative degree, you know what do we place before superlative degree? बता सकते हो superlative degree से पहले क्या लगता है? बताओ. The, very good. So when we have superlative degree here and here, what do we have to do? Superlative degree एक जगह लगाए और यहां पर अगर very लगाना है तो the plus very plus superlative degree, मतलब the तो लगेगा लेकिन the के बाद very आ जाएगा. This is one thing. इधर अगर बात करें superlative degree की तो much will be used, then the will come and then superlative degree. And let me tell you one more thing, superlative degree is not used with very much. ठीक है, superlatives very much के साथ यूज नहीं होते हैं. ठीक है, this can be only used with much or very. ठीक है, क्लियर है? इसको कॉपी करो, then I'll tell you what's the sentence. ठीक है, मैम very much और much का समझ नहीं आया. मच और वेरी मच जो है वो इंटरचेंजेबल है. मच की जगह वेरी मच लगा सकते हो, वेरी मच की जगह मच लगा सकते हो. ठीक है, इंटरचेंजेबल है. पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव जब थर्ड के फॉर्म में होता है तो हम मच या वेरी मच दोनों का यूज कर सकते हैं. मच का यूसेज सुपरलेटिव डिग्री से पहले होगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा और फिर मच होगा. ठीक है, किसी भी केस में मतलब I am telling you the cases only. यही cases हैं जहां पर आप यूज करोगे. ठीक है, I'll give you the examples related to it, but first copy this. ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम आपको एग्जांपल्स देते हैं. वेरी का लास्ट वाला देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, यू नो दिस थिंग, राइट? लेकिन अगर आपको वेरी भी लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी द और सुपरलेटिव के बीच में यूज होता है. उधर भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, लेकिन वहां पर द से पहले मच आएगा, द के बाद नहीं. वेरी द के बाद आता है, मच द से पहले आता है. ठीक है, दिस इज द केस, उमेश. डन.
रंजोद में ग्रामर के रूल्स इसीलिए तो प्रैक्टिस कराती हूँ ना, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको प्लेसमेंट आएगा उसका, ठीक है। यस स्वाति, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो, सो कैन वी रिमूव दिस नाउ, हटा दे। वेरी के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है, मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री वेरी मच के साथ नहीं लगती है, ठीक है। नहीं, जस्ट टेक 1 more minute, जल्दी से उसको कॉपी करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस वी हैव, हाँ एक और स्वाति है, स्वाति शर्मा इज देयर, और कोई स्वाति दिख नहीं रही मुझे। हाँ एक और स्वाति है, जय भाई समथिंग, या स्वाति जय भाई। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया तो, नेवर हर्ड ऑफ दैट सरनेम। ओके चलिए, हो गया, आगे बढ़े, बताओ, बोले भी एटे डन या। चलो, now let's take some examples related to these, इससे related examples देख लेते हैं कहां पर किया लगेगा, ठीक है। चलो, so if I say the match was dash interesting, what would you say? The match was dash interesting, बताओ। yes, surplus नहीं है, superfluous है मनीष, इट्स सुपरफ्लुअस, सरप्लस नहीं बोलते, ठीक है। यहां पर व्हाट विल यू यूज, मच लगाओगे नहीं, मैच इज अ नाउन राइट, मैच कैसा था, इंटरेस्टिंग, एडजेक्टिव बट इन आईएनजी फॉर्म, दैट मींस दिस इज प्रेजेंट, दिस मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या लगाओगे, द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। सो व्हेन आई से व्हेन आई केम होम आई वाज dash exhausted, I was dash exhausted. Now understand this thing, exhausted का मतलब होता है very tired, ठीक है। exhausted का मतलब होता है बहुत ज्यादा tired है, ठीक है। Now when I came home, जब मैं घर वापस आया, I was exhausted, again adjective but in verbs third form, that means verbs third form, that means this is past participle, and with past participle what do we place, past participle के साथ क्या लगाते हैं बताओ, या either much और very much, या तो much या फिर very much, दोनों का ही यूज यहाँ पर आप कर सकते हो, because it's interchangeable right। फिर उसी के साथ हमने लगाया she is dash clever, she is dash clever, what will you place, she is single unit, single unit के लिए एक adjective लिखा है, positive degree है right, positive degree है। So with positive degree what do you use, with positive degree use very, but when I say Rahul is dash clever than his brother, or if I say she is dash more beautiful than her sister. So the first statement, what do you have, Rahul is dash clever than his brother. See, we have not used a comparative degree, हमने comparative degree नहीं लगाई है, but still than का use हुआ है, मतलब comparison तो हो रहा है ना। सुनो मेरी बात, कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखी है लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, दैट मींस कंपेरेटिव सेंस इज देयर, तो आप क्या लगाओगे, ईदर प्लेस मच और वेरी मच, दोनों ही करेक्ट होगा अगेन, ठीक है। शी इज डैश मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर, अब यहाँ पर वेरी मच मोर लगा दो या मच मोर लगा दो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो मच का यूज होगा बिकॉज वी हैव अ कंपेरेटिव डिग्री हियर, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री नहीं लेकिन कंपैरिजन का सेंस है, हियर वी हैव अ कंपेरेटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव सेंस एज वेल, तो यहाँ पर आप मच भी लगा सकते हो, वेरी मच भी लगा सकते हो, इधर भी मच और वेरी मच जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट स्टिल he is the dash best man for marriage, he is the dash best man for marriage. Now you understand best is a superlative degree, the is placed here, तो the के बाद क्या आता है, the के बाद आता है
very, right? अगर हम इसको ऐसे लगाते, dash the best man, had the sentence been like this, तब यहां पर क्या आता? much the best man. Got it? Clear है? कॉपी करो. मोर क्लेवर श्वेता नहीं, तब क्लेवरर लगाते हैं. ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या लगाना है, वही तो डिस्कस कर रहे थे हम. यहाँ पर एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी लगाना है. यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, एग्जॉस्टेड है, तो मच या वेरी मच लगाएंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है. यहाँ पर क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी लगाना है. यहाँ पर क्लेवर दिया है, पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन दैन लगा है, मतलब कंपैरिजन तो हो रहा है ना, तो मच या वेरी मच लगाएंगे. यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री भी दी है और दान भी दिया है, तो उससे पहले मच या वेरी मच दोनों लगा सकते हैं. क्या हो रहा है भाई बाहर, क्या हो रहा है? प्लीज सी टू इट, एक बार बोल दीजिए. फिर उसके बाद यहाँ पर बेस्ट लगा है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा है और बीच में अगर ब्लैंक है तो वेरी लगता है. सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले अगर द लगा और उससे पहले ब्लैंक है तो मच लगता है. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस. अभी समझ में आया? बताओ, अभी समझ में आया दिशा? ओके, एक बार म्यूट करना. म्यूट म्यूट म्यूट. ओके, सो यहाँ पर लास्ट दो नहीं समझ में आए. लास्ट दो, दैट मीन्स दिस और दैट. ये वाला बताऊं मैं? सुनो, क्लेवर दिया है, पॉजिटिव डिग्री है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरिस्ट, अग्रीड, राइट? क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरिस्ट, क्लेवर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है ना, डिग्री तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी दान लगा है उसके साथ. पॉजिटिव डिग्री के साथ जो दान लगता है, दिस डिफाइंस दैट यू आर यूजिंग अ कंपैरेटिव सेंस. दैट मीन्स यू हैव टू प्लेस मच और वेरी मच. और जब मोर ब्यूटीफुल, जब कंपैरेटिव डिग्री ही आ गई, तब तो मच या वेरी मच लगेगा ही लगेगा, है ना? ईशांत, क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए? आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? डन है? क्लियर है? चलो, मैं एसएससी सीजीएल के लिए जो आप करवा रहे हो अभी, ईशांत, काफी सारी चीजें हैं जो नई ऐड हो जाती है एसएससी में, बिकॉज एसएससी में यू गो फॉर डिटेल्ड ग्रामर. ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाइड ग्रामर के ऊपर काम करते हैं, वहां पर आप डिटेल्ड ग्रामर के ऊपर काम करते हो. वन थिंग. उसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेबस, द सिलेबस इंक्रीजेस, लाइक वॉइस है, नरेशन है, वोकैबुलरी का एक अलग पार्ट आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर इंक्लूडेड, idioms and phrases are asked, so all of these are there. मतलब सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाएगा लेकिन ईजियर हो जाएगा. समझ में आई? सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होगा लेकिन ईजी हो जाएगा. ठीक है, आप बैच लोगे एसएससी सीजीएल का? क्या नहीं, एसएससी सीजीएल का एक बैच रत्नेश सर ले रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो एक और बैच स्टार्ट करेंगे अभी रिसेंट. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दैट बैच इफ यू वांट टू. ठीक है, क्योंकि रत्नेश सर भाई मेरे से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो. ठीक है, मैं तो कुछ ही टाइम पहले पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, लाइक 6 to 7 years. वो मुझसे भी पुराने फैकल्टी है. सो ही हैज अ ह्यूज बंडल ऑफ थिंग्स इनसाइड हिज हेड.
ठीक है, वेरी मच द बेस्ट वाला क्या था? वेरी मच नहीं लगता. Whenever you use very much, do not make this पाप. ये गलत काम कभी मत करना. सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी मच नहीं आता बच्चे, नहीं आता. ठीक है, ठीक है, समझ गए? ओके, नाउ स्वाति, मैं आपकी एक क्लास ले लूंगी यार डिस्क्रिप्टिव की एग्जाम से पहले. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, we'll discuss it as well. हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, what should be included, what should be avoided while writing an essay or a letter. ठीक है, चलो अभी इधर आते हैं. So we were on, now we are on sixth one, right? sixth की बात करते हैं. So very very much हो गया, right? अभी एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में, which are the words with which we use as and what are the words, हाँ, और what are the words that do not use. ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आज लगता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगता है. प्रिपरेशन आप करवाएंगे क्या? किस चीज का अंकिता, किस चीज का प्रिपरेशन चाहते हो बताओ? आज इज नॉट यूज्ड आफ्टर वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड्स है? अपॉइंट, मेक, चूज, दिख रहा है? चूज, call, consider, think. That's it. ठीक है, so these are the words that do not follow as after them. ठीक है, इनके बाद हम as का use नहीं करते हैं. So you don't use as after them. Name, elect लिखा है. Name, elect, think, call. Name, elect, think, call, make, appoint, choose. ठीक है, name, elect, think, call, अपॉइंट, मेक, चूज, कंसिडर. दैट्स इट. ये वर्ड्स हैं जिनके बाद आप किसका यूज नहीं करते हो? आज का यूज नहीं करते हो. ठीक है, आप क्यों नहीं कराएंगे आईबीपीएस पीओ में इसका प्रिपरेशन? नहीं करना है क्या? बताओ, नहीं करना है? मैंने कहा तो अरे भाई ये बताओ, जब सारी चीजें थी, जब सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, तो फिर होगा प्रिपरेशन, होगा. डोंट वरी. ठीक है, नाउ व्हेन आई से या क्या नाम है उनका? नरेंद्र मोदी. या नरेंद्र मोदी is appointed as the PM of India. Narendra Modi is appointed as the PM of India, right? Narendra Modi. अच्छा, why don't we use as after them? हम क्यों नहीं use करते? There's a question, right? As means likewise, right? As means likewise. As means के जैसे, right? के जैसे. Now tell me one thing, if I say नरेंद्र मोदी अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जैसे, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जैसे अपॉइंट हुए, वो है नहीं, राइट? दिस इज द मीनिंग दैट इट पोर्ट्रेस, राइट? इसका मतलब क्या निकलेगा? यही तो हुआ कि ही इज अपॉइंटेड लाइक अ प्राइम मिनिस्टर बट नॉट द प्राइम मिनिस्टर, है ना? इसका मतलब तो यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर के जैसे अपॉइंट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुए, राइट? सो देयरफॉर as is incorrect. हमें क्या बोला है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, सो इट शुड बी नरेंद्र मोदी इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, ठीक है. हम बोल सकते हैं this new matter is called as exatonium by the scientists, by the biologists, whatever, scientists लिख दो, scientists. अभी बताओ, cannot be there, right? Why? इस नए मैटर को एक्सेटोनियम के जैसे कहा गया है. नो, एक्सेटोनियम कहा गया है, नाम रखा है बाबा, नाम रखा है. यू कैनॉट यूज एज हियर, आप आज का यूज नहीं कर सकते. एक्सेटोनियम इज अ मैटर है, एक साइंटिफिक टर्म है ये एक्सेटोनियम. ठीक है, ठीक है. उसी तरह से ही इज इलेक्टेड एज द मेयर of the city. He is elected as the mayor of the city. Again incorrect. He is elected the mayor of the city. ठीक है, छापो. Then I'll tell you what are the words that where we can use it. ठीक है, अब हम बताएंगे आपको. ये तो थे कौन से वर्ड्स के साथ नहीं यूज करना है, अब हम बताएंगे कौन से वर्ड्स के साथ यूज करना है. ठीक है, तो उससे पहले जल्दी से कॉपी करो इसको.
Order of adverb. Sonpur fair is held gradually at the bank of Gandak in the district of Saran of Bihar at fortnight of Marshi in the month of November, vastly once a year to worship because it is the custom of Hindus. See, purpose तो सबसे लास्ट में लगता है सूरज. हाँ, see, listen, हाँ, ये एक चीज है, ये एक चीज होगी. इन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में आपको मिलेगा क्या, सब में आपको आज लिखा हुआ मिलेगा, राइट. All the newspapers use as after them. He's elected as an MLA, he's elected as whatever, right? हमेशा मिलता है. But why do we place them? There's a reason behind it. Because they use spoken English. Even if you say a sentence, if you read a sentence like this, you will always write as. ठीक है? Yeah? आप हमेशा as को देखोगे, as लिखा हुआ रहेगा न्यूज़पेपर में. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर एक्सेप्ट स्पोकन इंग्लिश. न्यूज़पेपर जो एक्सेप्ट करती है वो होता है स्पोकन इंग्लिश. ठीक है? हमें यहाँ पर वो चीज यूज नहीं करनी है. Got it? Got it? इसको हटा दें आप. Shall I wrap this up? स्पोकन थोड़ी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश डजंट फॉलो ग्रामर. स्पोकन इंग्लिश कभी ग्रामर को नहीं देखती है. आपको अगर पता हो, आई डोंट नो इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट इट और नॉट, व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री they don't judge your grammar. The only thing is you should know the name of that word, or whatever you want to say, you should know the name of that word in English. That means you should be able to speak English whether you're using it correctly or incorrectly. ठीक है? बाहर की कंट्रीज में यही होता है बाबा, वहाँ ग्रामर नहीं फॉलो होता. ठीक है? आप कोई भी, चलो आप पिक अप एनी मूवी, कोई भी मूवी उठा के देख लो, यू विल गेट वन थिंग फॉर श्योर. आपको एक चीज समझ में आ जाएगी क्या, कभी भी आपको कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं मिलेगा या फिर कोई भी ऐसी मूवी नहीं मिलेगी जहां पर लैंग्वेज करेक्टली यूज्ड हो, राइट. सो दिस इज द रीजन व्हाई कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस आते हैं व्हेन वी एक्चुअली डू इट. ठीक है? आई थिंक ऑफ यू a genius. I think of you a genius, but in real you are not. I think of you होता है, I think you नहीं. ठीक है? ऐसे I think you लगाओगे तो बोलोगे I think you are a genius. ठीक है? या I thought you were a genius. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. Now the words which use as after them. अब बात करते हैं कौन से वर्ड्स के बाद as लगता है. Some verbs that follow as after them. अभी कौन से verbs हैं, जल्दी से कोई बता सकता है क्या मुझे? किसी ने ऑलरेडी एक बताया है. As I can see, yeah, श्रीकांत ने बताया है. No regard, what else? No regard, what else? Describe, yes. Define, what else? View, absolutely correct. Treat नहीं लिखा है ना अभी हमने. Treat, what else? Anything that's left, we have written regard, describe, define, treat, view. No, regard, describe, treat. हाँ, that's it. ये सारे words हैं जिनके बाद आप as का use करते हो. You use the as after them. Now, verbs that follow as. Yeah. So if I say he is treated as the best dancer, उसको ट्रीट किया जाता है बेस्ट डांसर के जैसे, तो ट्रीट किया जाता है बाबा. हो सकता है ना हो सकता है उससे भी बेहतर कोई डांसर हो. सो ऑब्वियसली एक ट्रीट के साथ आज लगा देते हैं. ठीक है? वी कैन से अंबानीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट द रिचेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया. फैमिली ऑफ इंडिया. So what will you do? You will add as to it. Ambanis are considered as the richest family of India. ठीक है? ठीक है? Yeah. View to भी होता है. Yes, सूर्या, वो तो एक सीक्वेंस, वो तो एक फ्रेज होता है. ठीक है? That's a phrase. That's a phrasal preposition. ये कॉपी करो, फिर आगे बताते हैं. Oh shit, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक काम गलत कर दिया. So यहाँ पर as का यूज नहीं होगा. Why? Because it's considered. Considered लगा इसलिए as का यूज नहीं कर रहे, right? But what if I write Ambanis are regarded?
अंबानीज आर रिगार्डेड, तब आप as का यूज करोगे. अंबानीज आर कंसिडर्ड के साथ as यूज नहीं होगा, अंबानीज आर रिगार्डेड as के साथ as का यूज होगा. ठीक है. डिस्क्राइब के बाद क्या लिखा है? डिफाइन, DEFINE, DEFINE. गॉट इट? छापो. हाँ बेटा, मैंने यहां पर गलत से लिख दिया. ठीक है, सही कर दिया. फ्रेजल प्रेपोजिशन कराएंगे क्या कभी भी? अरे ऑन इन बिहाफ, ये ऑन बिहाफ ऑफ, इन एडिशन टू, विद अ व्यू टू, नो लेस दैन, ये सब होते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशंस. ठीक है. न्यू नहीं है बाबा लक्ष्मी, दैट्स व्यू, दैट्स व्यू, दैट्स व्यू, VIE, दिस इज, इट्स नॉट न्यू. ठीक है, हो गया. डन. बताओ क्या. नेक्स्ट देखो, नेवर यूज a negative adverb after a negative word. And then one more thing, vice versa. Vice versa means जो भी लिखा है उसका उल्टा भी नहीं करोगे. Like if you're not using a negative adverb after a negative word, you will not use a negative word after a negative adverb. ठीक है. नेगेटिव एडवर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड मत लगाना, नेगेटिव वर्ड के बाद नेगेटिव एडवर्ब मत लगाना. ठीक है अंकिता, उस पर ध्यान मत दो, फ्रेजल प्रेपोजिशंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. ठीक है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. वो मैंने सिर्फ एक टर्म बता दिया आपको कि इसको फ्रेजल प्रेपोजिशन बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपका. लीव इट, लेट इट बी. ठीक है. नाउ इफ आई से आई हैड हार्डली गिवन नो टाइम to my family. I had hardly given no time to my family. What रंजोत, अभी उसके बारे में बात करते हैं बाबा. बताओ. I had hardly given no time to my family. Now if you understand, hardly means very less, right? Hardly means very less. This is a negative adverb in itself, right? Negative adverb है, negative adverb है. So after that you cannot use a negative word. आप negative word नहीं लगा सकते. What you will have to do? In place of no you will place any here. तो यहाँ लगाएंगे I had hardly given any time to my family. Got it? Yeah, no should be removed. फिर उसी के साथ अगर हमने लिखा no one comes to meet him nowhere. No one comes to meet him nowhere. Again, no one is a negative word, so it will never be followed by negative adverb. No one comes to meet him anywhere will be used. ठीक है, keep this in mind. छापो इसको. Guys, have I told you about as and as, so and as? ये बताया था क्या? मेरे हिसाब से adjective में पढ़ाया होगा एक बार. Like you can use comparative degrees to compare. You can use superlative degrees to compare. You can use positive degree to compare as well, right? पॉजिटिव डिग्री को जब यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए, सो दो आज और आज से बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, सो और आज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. या एनी नेगेटिव नहीं होता, एनी नेगेटिव के साथ यूज होता है दिशा. ठीक है, एनी का मतलब होता है कोई एक, वो नेगेटिव नहीं है. ठीक है. नहीं सूर्या, adjective पढ़ाते time I told you this thing that whenever we use a statement which has a negative word, yeah, or whenever we use a negative statement we always prefer using any with it, right? तो any का use करते हैं negative statement में, therefore हमने यहाँ पर any का use कर लिया. Yeah, absolutely correct Lakshmi. As and as is used to define similar, and so or as is used to define dissimilar. ठीक है, is it clear? आगे बढ़े, बताओ. या चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. ठीक है. सो व्हेन यू ट्रीट कंपैरेटिव डिग्री एज एन एडवर्ब, या ट्रीटिंग कंपैरेटिव डिग्री
as adverb, use the before it. ठीक है? So what do you have to do? What do you have to do? Okay. What do you have to do? No, no. स्वाति ने यस बोल दिया, मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, जब रिवीजन होगा तब मतलब लिंक आएगा तब आप देख लेना, ठीक है? So treating a comparative degree as an adverb, use the before it. For example, ये भी शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा. Higher you go, cooler you feel. More you get, more you want. Now, if you see go and get are verbs, right? Feel and want are again verbs. So when feel, go, get, want, all of these are verbs, तो क्या होगा? Go कहाँ? Higher. Get क्या? More. Feel कहाँ? Feel क्या? Cooler. Want कहाँ? क्या? More. So you are using these comparative degrees. You are using these comparative degrees for verbs. And the word which is used for verb is called an adverb. समझ में आया? हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं किसके लिए? वर्ब के लिए. कूलर, मोर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? वर्ब के लिए. अब कोई भी शब्द जो वर्ब के लिए यूज होता है वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है. और हमने क्या कहा? जब एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री जब एडवर्ब का रोल प्ले करेगी तो उससे पहले द लगाना है. दैट मींस द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू गेट द मोर यू वांट. ठीक है? एक कंडीशन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? ये हो गया इसको. अच्छा, एक चीज और. What do you place after verbs of sensation? बताओ. verbs के बाद क्या लगाते हैं? बताओ. verbs के बाद क्या लगाते हैं? अभी मैंने बताया the words which are used for verbs are called adverbs. The verbs which are used for verb are called adverbs. मैंने बोला वो शब्द जो verb के लिए यूज होता है उसको हम adverb बोलते हैं, है ना? तो इसीलिए हमने बोला verb के बाद क्या लगता है? adverb का यूज होता है. what do you place after verb? Either an object or an adverb, right? या तो object लगाते हैं या तो adverb लगाते हैं. ये तो general verb की बात हो गई. But when you talk about adverbs or when you talk about verbs of sensation, तो verbs of sensation के बाद you cannot place adverb, you have to place adjective after them. ठीक है? आप इसके बाद adverb नहीं लगा सकते, आपको adjective लगाना पड़ता है इन verbs के बाद. ठीक है? Generally verb के बाद क्या लगता है? Generally it follows adverb, लेकिन verbs of sensation follow करते हैं adjective को. Clear हुई बात? For example, if I say it smells badly, so is this correct? It smells badly. बताओ, सही है क्या? No, it's absolutely incorrect. This tastes good. Is this correct? बताओ. बताओ. Yes, correct है. No, this is absolutely incorrect. This is incorrect. Correct नहीं है बाबा. Correct नहीं है. Good is an adjective. हमें क्या? अच्छा, okay. Sorry, मैंने क्या लिखना था? It tastes well. अगर well लिखा हुआ है, so this is incorrect. Why? Well is an adverb. हमें क्या लगाना है? Adjective. ठीक है? हमने बोला this looks nicely. This looks nicely. Again incorrect. Why? See, verbs of sensation. Verbs of sensation क्या होते हैं? You have 5 senses, right? You have 5 senses. Everything that you perform using these 5 senses are verbs of sensation. ठीक है? जो भी चीजें, जो भी काम आप परफॉर्म करोगे 5 senses को लेकर, उन सबको हम क्या बोलते हैं? Verbs of sensation. Like look हो गया, see हो गया, skin से you touch, you feel, tongue से you taste, ears say you listen or you hear, yeah. With eyes you look हो गया, see हो गया. Nose say you smell something. What's left? What's left? Taste हो गया. हाँ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 senses हो तो गए, है ना? So we have 5 senses और इन 5 senses से आप जो भी काम करते हैं, yes, observe is also there. So if whatever you perform using these verbs, इन verbs को use करके अगर आप कुछ काम करते हो तो उसके बाद it should be adjective that is used. It smells bad.
It smells good, not well. Well is an adverb. This looks nicely नहीं, this looks nice. ठीक है. So whenever you have these verbs, जब भी आपके पास ये verbs होंगे, इन verbs के बाद आप हमेशा adjective का use करोगे, adverb का नहीं. ठीक है. Copy this. He observes keenly. Yeah, correct है. But that, is there a word? He touches soft. It touches soft. Keenly is no adverb, yeah. जनरली वर्ब्स के बाद एडवर्ब लगता है, बट एडवर्ब सेंसेशन के बाद एडवर्ब नहीं लगेगा. ठीक है मोनिका. बट आई डोंट थिंक वी हैव अ वर्ड लाइक कीनली. कीनली जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है. आपने कीनली लगा तो दिया है, मैं ये कह रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग यू आर यूजिंग इट इनकरेक्टली और समथिंग लाइक दैट. Yeah, keen is eagerness, yes, and keen is a word which is used as an adjective and adverb both. ठीक है, वो दोनों की तरह यूज होंगे. एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे और एडवर्ब की तरह भी यूज होंगे. ठीक है. All is good or all is well. Which one is correct? All is well. All is well. Correct है. ठीक है. barely कैसे यूज होता है? जैसे hardly और scarcely यूज करते हैं वैसे barely यूज करते हैं. ठीक है. Just 1 second guys. ये कॉपी हो गया? Is it done? बताओ. Is this done? Done? Okay. Let's solve one more thing and then I will discuss one more part of it. Okay. Now the next condition that comes in here is what? Acha, what is the difference between too much and much too? Right? Too much और much too के बीच में क्या difference होता है? बताओ. Too much और much too के बीच में क्या difference होता है? Any idea, guys? Video struck? I think now it's working. Too much follows noun. Yeah, too much follows noun. Okay. So when I say her words gave me dash pain, and if I say her words were dash painful. Now if you understand one thing, एक चीज अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा. her words gave me something, right? तो उसके शब्दों ने मुझे कुछ दिया. उसके शब्दों ने मुझे कुछ दिया. So when I give you a paper, I give you a pen, I give you everything, right? I give you an object. That means मैं आपको कुछ देती हूँ तो वो object कहलाता है. Now whatever is used as an object, that's a noun, right? वो noun होता है. So pain is a noun. So what do you do? What do you do? Noun से पहले या gerund also. Gerund is also a noun, right? So when noun or gerund are used, तब आप क्या लगाते हो? Her words gave me too much pain. But when I say her words were something, उसके शब्द क्या थे? उसके शब्द थे painful, right? दर्द भरे थे. So this is an adjective, right? So when you want to place an adjective,
When you want to place an adjective, or adjective के अलावा you can also say participle. Participle are also adjectives, right? So when I say the words were much too painful, why? Because this is an adjective. So before adjective you place much too, before noun you place too much. ठीक है? Copy करो. Eleven and 12. टू मच के बाद नाउन और जेरेंड लगता है, मच टू के बाद एडजेक्टिव और पार्टिसिपल लगता है. नाउन अगर लगा हुआ है स्टेटमेंट में तो टू मच लगा देना, एडजेक्टिव लगा है तो मच टू लगा देना. ठीक है? There's no word like faithfully, dude. Faithfully जैसा कोई word ही नहीं है. I just checked it. We only use faithful. ठीक है? We only use faithful. ठीक है? much too का too much का दोनों का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा. दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, a lot. ठीक है? क्लियर? Is it clear, guys? चलो आगे बढ़ते हैं. Let me tell you one more thing. Guys, there are certain words which do not or never follow no or not after it. ठीक है? Some words never use never, no or not with them. ठीक है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ना नोट लगा सकते हैं, ना नॉट लगा सकते हैं, ना नेवर लगा सकते हैं. ठीक है? Why? Because so obviously बात है कि हम क्या लगाएंगे, obviously वो words negative होने चाहिए, right? So we have deny, we have forbid, we have both, we have unless, we have until. Yeah? What else? What else? Lest, hardly, scarcely, rarely. Lest, hardly, rarely, scarcely, and barely. Right? So with these words you never use no, not, and never. इन सब के साथ आप no, not, never का use नहीं कर सकते हो. ठीक है? और क्या होता है? You can say to के साथ जब to का use होगा तब भी, और yeah, seldom. Yes, seldom के साथ भी. So these are the words which do not follow no or never after them. ठीक है? No, not, never. ये कुछ नहीं लगेगा इसके साथ. ठीक है? For example, if I say I deny him for not obeying my orders. Is this correct? I deny him for not obeying my orders. नहीं, I deny him for obeying my orders. इस तरह से आप लगाओगे कि मैं उसको मना कर रहा हूँ क्या करने के लिए, किस वजह से, कि उसने मेरे ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया. ठीक है? सो विथ रिफ्यूज, विथ बोथ, और फॉर एग्जाम्पल अगर बोले अनलेस ही डज नॉट कवर हिज वूंड it will become worse. ठीक है? जब तक वो अपना वूंड कवर नहीं करेगा तब तक और ज्यादा खराब हो जाएगा, राइट? वूंड उसका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा. सो अनलेस यूज हो गया तो यू कैन नॉट यूज नॉट हियर. अनलेस ही डज कवर और अनलेस ही कवर्स, सीधे ये लगा दो. अनलेस ही कवर्स हिज वूंड इट विल बिकम वर्स. ठीक है? So these are the words we do not use. Yeah, if you refuse भी add कर सकते हो. Refuse is also a word. ठीक है? So with these words you cannot use no, not, never. ठीक है? For example अगर आप बोलते हैं ना one of them
is a culprit if not both. So if you write this, one of them is a culprit if not both. उन दोनों में से कोई एक culprit है अगर दोनों नहीं है तो, right? उन दोनों में से कोई एक culprit है, दोनों नहीं है तो. So not both नहीं होता है, not both नहीं होता, it's neither what you place. ठीक है, neither लगाते हैं, not both नहीं लगाते. ठीक है, so one of them is a culprit if neither, मतलब दोनों नहीं है तो एक तो है ही. ठीक है, एक तो है ही culprit. कॉपी करो इसको. डज इसलिए हटा दिया क्योंकि कवर्स कर दिया ना. डज लगा रहता तो कवर रहता, तो डज हटा दिया, कवर्स कर दिया, एस यहां पर ऐड कर दिया. ठीक है, वो डिनाई के लिए नॉट यूज नहीं हो रहा है श्वेता, वो आई के लिए यूज हो रहा है. आई कांट डिनाई हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती. हाँ, मैं उसको मना नहीं कर सकती, तो वो नॉट पहले यूज हो रहा है. I denied him for not doing this नहीं हो सकता, right? I denied him for doing this हो सकता है, मैंने उसको मना किया ये करने से. ठीक है, हो गया. डन. चलो दो चीजें मैं आपको और बता रही हूँ, प्लीज हैव अ लुक. सो गाइस, व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब ऑफ, अच्छा चलो ठीक है, उससे पहले टेल मी वन थिंग, व्हाट 3 थिंग्स यू रिक्वायर टू राइट अ सेंटेंस. आपको किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, बताओ. बताओ, आपको किसी भी चीज को लिखने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है. दिस इज आई सपोज 14, राइट? या आपको किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए व्हाट आर द 3 थिंग्स? एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें होती हैं, राइट? सो दिस इज अ सेंटेंस दैट यू हैव इन एक्टिव वॉइस. ये होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई बार ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वही रहने देते हैं, एक्टिव वॉइस है अभी भी, और कभी कभी वर्ब इज इन्वर्टेड, मतलब वर्ब पहले यूज हो रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद. दैट मींस व्हाट हैपेंस, यू यूज योर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, देन द सब्जेक्ट एंड देन द मेन वर्ब. ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट, ऐसे आप यूज करते हो. सो दिस फॉर्मेशन, यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म. इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा, राइट? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा. So when you place helping verb before the subject and after the subject you place a main verb, this is called law of inversion. ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं law of inversion. ठीक है, so the condition is, रंजोत, अगर मैं कोई चीज समझा रही हूँ, बीच में अगर क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए भी समझाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, मेरा दिमाग सीधा आपके क्वेश्चन पे जाता है, फिर ये चीज भूल जाती हूँ मैं क्या समझा रही हूँ. ठीक है, सो पहले कंप्लीट होने दिया करो कोई टॉपिक, फिर उसके बाद आप डाउट्स ले लिया करो. ठीक है, नाउ सो इन्वर्टेड हम क्या कह रहे थे? हाँ, सो नॉर्मली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटेंस. बट व्हाट हैपेंस, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है. सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट लॉ ऑफ इन्वर्जन. ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं. Now, what are the conditions where we use it? इनके अलग अलग conditions है, कहाँ पे हम इनको use करते हैं. So starting with the first 2 conditions, पहले अगर start करें, so if you are starting a sentence using so plus adverb of manner, अगर आप sentence को so plus adverb of manner से start करते हो, तो some people might say that so से sentence start नहीं हो सकता, right? Some people might say that you cannot start a sentence using so, but I say you can start a sentence using so. The sentence would be like this: so plus adverb of manner plus helping verb plus subject plus main verb and then the rest of the sentence. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे, so you can definitely do that. Why? Because this formation is called what? This formation is called law of inversion.
ठीक है, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं हटा दूं क्या? शैल आई रब दिस? बताओ। नो, जल्दी इसको, इतने पार्ट को जल्दी से कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज भी बता देती हूँ। अभी रणजोत का क्वेश्चन ले लेते हैं। वन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स फार्म हाउसेस, सीबीआई ऑफिसर्स फार्म हाउसेस होगा रणजोत। वन ऑफ द के बाद जो नाउन लगता है वो प्लूरल होता है। फार्म हाउस इज अ नाउन, तो वो प्लूरल होगा। प्लीज टेल हाउ टू Ishant, you don't have to remember the rules. If you start remembering the rules, you will never be able to solve questions. अगर आप rules को याद करने बैठ जाओगे तो कभी जिंदगी में rules याद नहीं होंगे. What you have to do is you have to practice as much as you can. उस question से related जितना ज़्यादा practice कर सकते हो उतना ज़्यादा practice करने की कोशिश करो, ठीक है? Yeah. So with this you will be learning what to do and how to do. क्या हुआ? Okay, done? चलो. अब मैं कह रही थी दो कंडीशंस जो आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन की, वो ये है, पहला चीज सो प्लस एडवर्ब मैनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यू विल डू इट लाइक दिस, ठीक है? आगे जाके एक चीज और ध्यान रखना, दैट भी आएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू सो के साथ दैट का यूज होना जरूरी होता है। टोल्ड यू दिस थिंग राइट यस्टरडे। सो दैट आगे चल के आएगा कहीं ना कहीं पर सेंटेंस में, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है? एक ये कंडीशन हो गई। एंड व्हेन योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? When your sentence starts with adverb of time or adverb of frequency, again you will place the helping verb first, then the subject, then the main verb, ठीक है? And then the rest of the sentence, ठीक है? समझ में आया? Okay. हाँ जी दिशा ऐसे ही. So let's take some examples for it. Examples भी ले लेते हैं. For example, if I say so nicely या so neatly, so neatly he wrote the essay that, देखो that आया ना, that he was appreciated by all, appreciated by all, ठीक है? One thing. Now see, yeah, now see the sentence starts with so plus neatly, so plus adverb of manner, है ना? तो क्या आना चाहिए था? helping verb. But can you see a helping verb here? Helping verb तो है नहीं. So इस condition में हम क्या करते हैं? We look at the main verb. Main verb is given in past tense, right? Past tense का helping verb आ जाता है did, and did is always followed by verb's first form. So you cannot write wrote, you have to write what? Right. Sentence ऐसा बनेगा, so neatly did he write the essay that he was appreciated by all. ठीक है? अभी ऐसे भी लिख सकते हो, so nicely she performs that everyone calls him, calls her to the function, ठीक है? वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि उसको हर कोई अपने फंक्शन में बुलाना चाहता है, राइट? Now again, so plus nicely, so plus adverb of manner use हुआ है, subject cannot be placed. So look at the main verb, performs, present tense दिया है, right? जैसे past tense का did था, present tense का क्या होगा? दिशा आपसे क्वेश्चन है ये, जैसे past tense का did था वैसे present tense का क्या लगाऊं मैं? जल्दी 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 जल्दी. डू नहीं, डू तब लगेगा जब प्लूरल होगा, है ना दिशा? डू तब लगेगा प्लूरल होगा. शी सिंगुलर है तो क्या करोगे? डज का यूज करेंगे. So nicely does she perform, again performs नहीं हो सकता, so nicely does she perform that everyone calls her to the function. समझ में ये बात इतनी क्लियर है? या सिमिलरली अगर एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट होता है, मे बी seldom he visits his parents, yeah, seldom he visits his parents. Again starting the sentence with seldom, ही नहीं लग सकता, visits प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ से s हटा दो पहली चीज और यहाँ पर does लगा दो. So seldom does he visit his parents, this is the correct sentence, ठीक है? Never I will see his face again, never I will see his face again, never I will see his face again. Again will लगा है, helping verb है, you will not place it here, place it before the subject. So never will I see his face again. Got it? क्लियर है? कॉपी करो इसको.
ऐसे ही हार्डली में करते हैं, यस ऑफ कोर्स हार्डली में भी करेंगे, क्योंकि हार्डली भी तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ना, हार्डली तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। हार्डली अगर बोलोगे, हार्डली आई हैड कॉल्ड हिम व्हेन ही रीच्ड, हार्डली आई हैड कॉल्ड हिम व्हेन ही रीच्ड, मतलब मैंने मुश्किल से उसको फोन किया ही था कि वो आ गया, है ना। सो हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट करो, दैट्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब हैड यहां नहीं लगेगा, हैड विल बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन ही रीच्ड, ही रीच्ड द ऑफिस, ऐसे ही बोल दो, रीच द ऑफिस, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। बट पास्ट यूज करते हैं हमेशा, ये किसने बोला, ये किसने बोला पास्ट यूज करते हैं हमेशा? अगर प्रेजेंट में है तो डज लगा दो, फ्यूचर में है तो विल लगा दो, पास्ट में है तो डिड लगा दो। ये थोड़ी जरूरी है कि पास्ट टेंस ही लगेगा। पास्ट टेंस का रूल यहाँ फॉलो होता है, हार्डली बेली स्केसली के साथ आप सिर्फ हैड लगाते हो, ठीक है। टेंस कब लेंगे, एडवर्ब खत्म हो जाए तो फिर टेंस पढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, so that's it for today guys, thanks a lot for joining me here, bye bye, take care of yourselves. Meaning of frequency is rarely, no, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना किस हद कितनी बार कोई चीज हुई है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स अ वर्क इज परफॉर्म, कितनी बार कोई चीज हुई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वी विल मीट टुमारो, कल हम मिलेंगे, या कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मुक्तेश्वर, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय।